If your lordships have it, I'll read, sir. Members to the seats reserved for women, which are allocated to a province under Clause 3, shall be elected in accordance through proportional representation system of political parties list of candidates on the basis of total number of general seats secured by each party from the province concerned in the National Assembly. Provided for the purposes of this paragraph, the total number of general seats won by a political party shall include independent returned candidate or candidates who may duly join such political party. Now this is the contentious point where Justice Mandokhel and the other dissenting members have very strongly disagreed. Within 3 days of the publication in the official gazette of the names of returned candidates. Now, of course, the majority judgment has extended this time period. Could this be done? That is the central constitutional question before your lordships. Now, as I will show to your lordship, this is not a time period written in stone. And by relying on Article 254 of the Constitution, I will try to convince your lordship that this... एक बात ध्यान में रख लें, जी जी, पीरियड उस वक्त एक्सटेंड किया जाता है जब वो पीरियड किसी ने अवेल ना किया हो. यहाँ पे तो अवेल हो चुका है, 3 दिन के अंदर अंदर आपको ज्वाइन कर चुके हो. exactly circumstances में अवेल किया जा सकता है. you provided opportunity. सर, आर्टिकल 254 इस तरह लगता है हमारे केस में जिस तरह किसी प्रीवियस केस में नहीं लगा. बिल्कुल लगता है ये कि ड्राफ्ट ही हमारे लिए हुआ था. नाउ आई कम बैक टू द जजमेंट सर. पहले 254 पढ़िए. अच्छा, मैं 254 जरा आप कह रहे हैं आपके लिए बनाया है, प्लीज रीड. लगता यही है. चलें देखते हैं. आप ये नहीं लिखा. करिश्मा है बस अल्लाह ताला सर, गॉड हैज हिज ओन वेज सर. 254. If I may read, when any act or thing is required by the Constitution to be done within a particular period, and it is not done within that period. Within that, ये रुक जाए यहाँ पे. ठीक है. It is not done within that period. It has already been done. No. They have exercised It that was power. not done. मैं वो explain करूंगा, पढ़ दूं पूरा. 3 दिन में आपको ज्वाइन नहीं हुआ था. आपने कहा वो ज्वाइनिंग ही नहीं थी. आपने तो कहा वो ज्वाइनिंग ही नहीं थी. हमने तो आपके केस में 39 के केस में भी ज्वाइन किया. आपने कहा वो ज्वाइनिंग ही नहीं. अगर ये बात आपकी मान ली जाए, जी, जी. फिर तो आपकी पिटीशन खारिज होनी चाहिए. आप हैं कौन? हाँ? किसी ने आपको ज्वाइन ही नहीं किया. आप कौन है? SIC कौन है? जिस बेसिस पे आप क्लेम लेके आए थे, दैट गोज. आप कह रहे हैं कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया. अगर आप ये कह रहे हैं कि ज्वाइन ये आपकी जजमेंट का कॉन्सिक्वेंस है. nobody before us. नो जजमेंट, क्योंकि आपने मेरा क्लेम रिजेक्ट कर दिया. लोकस स्टैंडे का इशू है कि जब आपने मेरा क्लेम रिजेक्ट कर दिया तो क्या मैं अभी मेजॉरिटी जजमेंट को फिर भी सपोर्ट कर सकता हूं, इवन दो द जजमेंट इज अगेंस्ट अस. अगर आप ये एरर पॉइंट आउट करेंगे तो माय लॉर्ड विल आल्सो रिव्यू इट्स ओन जजमेंट. नहीं, व्हाट यू विल डू. नहीं, मैं तो अपने जजमेंट देखे इस तरह कायम हूं. अगर आपकी बात मान ली जाए या जजमेंट को मानी जाए, इसका मतलब ये हुआ कि आपको किसी ने ज्वाइन नहीं किया. ठीक, तो जो 39 कैंडिडेट थे वो तो स्टिल PTI के रहे. वो PTI के हो गए. बाकी जो है 3 दिन मिलने के बावजूद इन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया. ये नहीं कहना दुरुस्त होगा किसी ने ज्वाइन नहीं किया. अब खुद क्या इसको रीफ्रेजिंग ये होगी कि वो ज्वाइनिंग गलत थी, ये आपने डिक्लेयर की. इफ आई मे रीड द आर्टिकल. 254 is not rectifying the defects or illegalities. 254 is a coverage for doing some act, and if it is not done with the title. due to some certain reasons. Apparently आपके खिलाफ लिखा हुआ है. नहीं. A communi observantia non est residendum. जी. A communi observantia non est residendum. A thing is to be done in a particular manner. It has to be done in that. This is an exception to that. This provides an exception to that. तो देखें, this is just like an extension of time. Yes. As you apply under section 148 CPC, it only says that required by Constitution to be done within a
particular period. सर मैं जरा सा इस पे It जब is not done within that period. सर मैं जब केस लॉ रेफर करूंगा ना आप देखिएगा इसकी से पहले इंटरप्रिटेशन देखें ना, each case has to be decided on its own peculiar facts and circumstances of the case. Do you know that? जी, And जी. obviously you know. जी. Then if it is done within a particular period of time, nobody is saying that you have not joined. You have joined that within 3 days, but there was an error ke who you joined, which has not contested the election. Your lordships- cannot earn or won any seat in the election. Your lordships have declared that the act of joining from the very beginning was illegal. whether any person who So that is the issue. Whether 254 will now protect the right of that person जिसको illegally deny किया गया है. आप ये बता दें कोई कैंडिडेट कोई और illegal act करे इलेक्शन कमीशन और आप ये कहे कि जी नहीं, ये तो आपने किया था ना, वो इलेक्शन कमीशन ने थोड़ी किया. इलेक्शन कमीशन Join तो आपने किया नहीं ना. सर, उन्होंने हमें इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया. अगर वो हमें इंडिपेंडेंट डिक्लेयर नहीं करते हम ज्वाइन नहीं करते. 254 की बेस्ट जो एग्जांपल है वो इलेक्शन की डेट है. जी जी इलेक्शन 90 डेज में होना था. जी, जी. 90 डेज गुजर गए थे, तो 90 डेज के बाद इलेक्शन हुआ, वैलिड करार हुआ, 254 वहां जरूर आएगा. नहीं, एक और सर्कमस्टेंसेस में जस्टिस काकर ने एक जजमेंट में अप्लाई किया जिस पे मैं आऊंगा, बलोचिस्तान की अब इन रैम- जजमेंट, रीसेंट जजमेंट ऑफ 2025. आप इन रैम सर मैं उस पे आता हूँ, आपकी एक जजमेंट है इसी पे 254. जी आप इन रैम पढ़ रहे हैं, इन पर्सनम होगा ये. जी आप इन रैम पढ़ रहे हैं बट ये तो इन पर्सनम होगा बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक केस. It applies on the case-to-case basis. Yes, it You applies to cannot case-to-case apply that basis. in RAM. जी, जी, बिल्कुल, In all बिल्कुल. circumstances, you have to. सर see मैं the पूरा particular- पढ़ दूं ये प्रोविजन. फैसल अगर ये देखेगा ये जो हमारे नोट है उसके ज्यादा करीब आ रहा है. हमने ये तस्वर किया कि जो पीटीआई के 39 कैंडिडेट्स थे वो आप ऐसा समझ लें कि उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया. वो स्टिल अपनी जगह पे थे, उनको अपनी पार्टी में जाना था, उनके तादाद की बुनियाद पर उनको सीट्स मिली. जहाँ तक इंडिपेंडेंट है वो आपको ज्वाइन करें या ना करें, 3 दिन गुजर गए, वो फॉर द पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स उनको काउंट नहीं किया. सर टाइमलाइन तो आपने भी चेंज की है. कैसे चेंज की? सर नॉमिनेशन पेपर्स की टाइमलाइन, कौन सी? सर नॉमिनेशन पेपर्स की टाइमलाइन तो गुजर गई. आपने तो सिर्फ ये कहा ना कि वो 39 कैंडिडेट्स, एक मिनट सर, वो 39 कैंडिडेट्स पीटीआई का पार्ट बनेंगे. उन्होंने लिस्ट जमा करवा दी, अब उनको नॉमिनेशंस भी तो जमा करवाने, कौन सी उसके लिए नया शेड्यूल इशू होगा. कौन से नॉमिनेशंस? सर नॉमिनेशंस फॉर रिजर्व सीट्स पहले जमा होती है. नहीं, नई टाइमलाइन वो होगी. इलेक्शन से पहले जमा होती वो है. 24th पहले देना पड़ता है. लास्ट डेट थी, जमा It is हो not चुकी है. for after नहीं, election. नया शेड्यूल इशू होगा सर. तो नहीं, टाइमलाइन नहीं, तो नहीं, आपने भी चेंज की है. नहीं, कौन सा नया शेड्यूल इशू होगा फैसल साहब? अब मैं दिखाता हूँ, वो भी मैं दिखाता हूँ, क्योंकि ये पहले हो चुका है बाप पार्टी के आपकी issue. जो कैंडिडेट है ना PTI की जो है वो तो लिस्ट अवेलेबल थी. नहीं अवेलेबल थी. नॉमिनेशन पेपर्स के लिए तो शेड्यूल इशू होगा नया. schedule वो मैं है. दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ. वही schedule एक मिनट है. में ये पूरा प्रोविजन पढ़ दूँ सर. एक मिनट सर इस बात को दोस्तों नहीं, वो वही शेड्यूल है जो सबके लिए जारी है. और बल्कि जो आपकी एक कैंडिडेट थी पीटीआई की, उन्होंने तो एप्लीकेशन ये दी कि मैं चूंकि वहां पे मैंने नॉमिनेशन पेपर जमा किए थे ऑन द नेम ऑफ पीटीआई, अब मुझे इजाजत दी जाए कि मैं एसआईसी की हो जाऊं. वो अपने डॉक्यूमेंट नहीं सर ये नहीं है, मैं दिखाता हूँ आपको एक टाइमलाइन. आपकी बात ये दुरुस्त है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में टाइमलाइन है वो आपने नहीं बदली, जो स्टैट्यूट में टाइमलाइन है वो आपने रिलैक्स की है. आपकी जजमेंट मैं डाल शो बता दे, कहीं से बता दे.